Hello everyone. Welcome to our initiative Weekly Current Affairs. Today we would be discussing topics on Indian economy and we would be covering from 8th to 14th of March. Before we begin, we will see what all we will cover today. So let's look at the content list. The first topic that we would be discussing is National Employability through Apprenticeship Program, NETAP, setting up of new umbrella entities, Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution, we also call it as SVLDR scheme. We would talk about write off, write down, and waive off, the difference between these three. Bureau of Indian Standards, Economic Freedom Index, pre-pack mechanism, Index of Industrial Production, commonly known as IIP. Then we would be talking about AT1 bonds and then the PCA framework. And in the last, we would finish it off with finance, a hurdle for electric vehicles, a report by Niti Aayog. So let's begin with the first of the topics. So the first topic is about National Employability through Apprenticeship Program, what we call it as NETAP. So as we always do, we talk about why it was in the news. So it was in the news because of the study by the National Employability through Apprenticeship Program (NETAP). It talked about that India's apprenticeship ecosystem is currently witnessing a positive momentum. So let's talk about this program itself. It is the fastest growing blended apprenticeship training program. What is NETAP? I mean, it is a skill training program wherein the program is conducted by a company for individuals, I mean, called as apprenticeship, where they provide classroom training for a short duration, which is followed by on-job training. What we may call it as practical knowledge. I mean, they give the apprentice practical knowledge. This was through a report, Apprenticeship Outlook Report 2021, wherein they talked about this positive momentum. So this program was launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and in association with Team Lee's Skills University, which is located in Gujarat. It is also India's first vocational skills university. What is important here is that you should note that it was set up in 2014. That's one aspect. But what we must remember it is 100% employer funded public private partnership. So this is what is important for us, as far as your UPSC preparation is concerned. This is what you must remember. This NETAP is in accordance with the National Employability Enhancement Mission. We will talk about NEEM. We also call it as NEEM. We will talk about it a little later. So what is the aim of NETAP? So it aims to help organizations develop the qualified, robust and sustainable workforce. Look, India always, we always talk about demographic dividend. We always say that the current Indian population is having a demographic dividend, wherein everyone is, most of us are in the employable age and we are productive, but the problem is that we lack the skill. So in that regard, the government keeps on taking initiative so that the individuals are more skilled, somehow their skill can be developed. So that is what is the aim here, to develop a qualified, robust and sustainable. So qualified, you have to make them skillful, robust, and then this has to be sustainable for the long duration, long term, so that we have a productive human supply chain. तो किसका supply chain है? Human supply chain, सब कोई productive रहे and they are giving their best. It is an output driven and helps employer to design training programs relevant to their organization and industry to create the right talent. तो यहाँ पे क्या है? Employers create a training program जो कि उनके भी relevant है and that also provides skills to the apprentice. तो इंडिविजुअल सीख भी रहे हैं और वो उस तरह से सीख रहे हैं जिससे कि वो बाद में एम्प्लॉयबल हो जाए, उनको नौकरी मिल जाए.
सो दिस वाज थ्रू एन अप्रेंटिसशिप आउटलुक रिपोर्ट। तो उसके की फाइंडिंग्स देखते हैं। तो दिस वाज 41% of the employers in India are keen on hiring apprentices. तो that means एवरीवन अप्रिशिएट्स कि उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल रही है पहले से ही, मतलब कि उनको ऐसा ट्रेन किया जा रहा है कि बाद में नौकरी मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक ऑफ जॉब। सबको बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो पीपल आर नॉट दैट स्किल्ड, तो उन लोग को सबको क्या चाहिए, जॉब। तो जॉब चाहिए, तो मतलब उसी तरह से ट्रेन होते हैं जिस तरह से उनको कि जॉब मिल पाए। ठीक है। 58% of enterprises want to increase the quantum of their apprenticeship hiring this year। ठीक है। 58% ऑफ इंटरप्राइजेस क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू इंक्रीज द क्वांटम ऑफ देयर अप्रेंटिसशिप, मतलब कि वैसे लोग जो कि ट्रेनिंग चाह रहे हैं, उस तरह के लोग को ट्रेनिंग यदि ज्यादा देंगे तो उस तरह से हम लोग को ज्यादा लोग को हायर कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ऐसा करते हैं। आउट ऑफ द 18 सेक्टर्स रिव्यूड, मोर देन 16 वे आर कीन ऑन हायरिंग अप्रेंटिसेस। तो दीज आर गुड प्रैक्टिसेस। तो कीन है मतलब कि यूजफुल है, यदि यूजफुल नहीं होता तो लोग इसे फॉलो नहीं करते। फिर द मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज एंड रिटेल are the leaders sector like travel and hospitality and beauty and wellness, the spaces severely hit by the pandemic। तो सबसे ज्यादा कौन लीडर कौन है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स एंड रिटेल। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली एज इन विद द पैंडेमिक, ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थोड़ा सा गिरा था। आई मीन नॉट मेनी वेयर ट्रेवलिंग फॉर लीजर, एज इन इधर उधर नहीं घूम रहे थे, दे वर स्टक इन होम। तो जो कि नेसेसिटी है, यूटिलिटी है, वहां पे ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। तो इस कारण से ऑब्वियसली ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थोड़ा सा दिक्कत में रहा था। ओवरऑल द प्रेफरेंस फॉर वुमेन अप्रेंटिसेस हैज इंक्रीज्ड बाय 10% ईयर ऑन ईयर, एंड दिस ट्रेंड वाज मोर विजिबल इन बेंगलुरु, मुंबई एंड कैलकाटा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली लड़कियों को भी ट्रेन किया जा रहा है, एंड दैट हैज इंक्रीज्ड एज इन 10% ईयर ऑन ईयर। ठीक है। तो अब ऑब्वियसली यदि अप्रेंटिसशिप को लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि वो क्यों इंपॉर्टेंट था। तो एज आई टोल्ड दैट इंडिया में बहुत लोग हैं जो कि एम्प्लॉयबल एज में हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, बट दे लैक स्किल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो लाइक इफ वी सी द डेटा, ओनली 3.5% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज स्किल्स ऑफ एनी सॉर्ट, मतलब कि दे कैन वर्क बट ऑब्वियसली दे लैक स्किल। और जो कि मतलब यदि कंपेयर करें दूसरे कंट्री से, लेट्स सपोज यदि चाइना से कंपेयर करते हो, दैट इज 47%, जर्मनी 74%, जापान 80% एंड साउथ कोरिया 96%। तो वहां के लोग काफी स्किलफुल हैं इन रिलेशन टू व्हाट इंडियाज यूथ आर। तो यहाँ पे मतलब कि दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल हेल्प, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद डिफरेंट इनिशिएटिव्स to provide job to our young population. Statistics show that approximately 3% of children drop out after grade 5th and 8th in the country owing to socio-economic challenges। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, almost 3% of children drop out only after grade 5th। तो उसके बाद जब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर obviously that will lead to challenge। तो इसलिए मतलब कि ज्यादा स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। Then you talk about apprenticeship training is considered to be one of the most efficient ways to develop skilled manpower। क्या करते हैं, ट्रेनिंग जो है आपका, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेज टू डेवलप स्किल्ड मैनपावर, क्योंकि जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसा आप उसको मतलब पढ़ाते हो और फिर वैसा ऑन जॉब ट्रेनिंग दे देते हो, जिससे कि काफी इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाता है फॉर्मल ट्रेनिंग में ये। ठीक है। तो लेट अस लुक नाउ अबाउट डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो कि इंडिया में चले हैं रिगार्डिंग अप्रेंटिसशिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टॉक अबाउट अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। ठीक है। तो दिस वाज obviously as it mentions 1961 में enact हुआ था। it was enacted with an objective of regulating the program of training of apprentices in the industry by utilizing the facilities available therein for imparting the on the job training। तो मतलब फॉर्मल तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट है उस तरह का ट्रेनिंग ही दिया जाए, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्ट केम। ठीक है। देन नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आया, जिसे हम लोग NAPS भी कहते हैं। तो दिस ऑल्सो देखो, बेसिक चीज तो इसमें यही रहेगा कि मतलब कि हम लोग उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग बाय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस इन द इंडस्ट्री। ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या है, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग थ्रू टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग,
जो भी आ रहे हैं उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो मतलब कि टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कि उसको अच्छा सा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई, तो अगेन दैट बिकम्स अ लिटिल इजी। तो इस तरह से मतलब कि सारे स्टेट्स को गवर्नमेंट बोला कि लेट्स ट्रेन द वर्कफोर्स, और तभी मतलब हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठा पाएंगे। फिर इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते थे, तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम से लिंक कर दिए, लाइक पीएमकेवीवाई या फिर ग्रामीण कौशल योजना, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। तो इस तरह से इसे दूसरे इनिशिएटिव से, दूसरे स्कीम से इसे मर्ज कर दिए, ताकि जॉब्स और क्रिएट हो पाए और स्किल डेवलप हो पाए बेसिकली, एंड फिर वहां से उनको जॉब मिल पाए। देन वी कैन टॉक अबाउट नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, एनएटीएस। तो ये आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था, एज इट सेज, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एमएचआरडी फॉर स्किलिंग इंडियन यूथ। इसमें क्या होता है, ये 1 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 year प्रोग्राम इक्विपिंग टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ विद प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन देयर फील्ड ऑफ वर्क। We can also talk about the next scheme, scheme for higher education youth in apprenticeship and skills, जिसको हम लोग श्रेयस भी कहते हैं। इट इज अ प्रोग्राम कंसीव्ड फॉर स्टूडेंट्स इन डिग्री कोर्सेज। तो ये आपका डिफरेंस है, तो इनकेस यदि एग्जाम में आता है तो वी शुड नोट कि स्टूडेंट्स इन डिग्री कोर्सेज प्राइमरीली नॉन टेक्निकल विथ अ व्यू टू इंट्रोड्यूस एम्प्लॉयबल स्किल्स into their learning and promote apprenticeship as integral to education, ताकि उनको फिर अगेन जॉब मिल पाए। तो ये आपका प्राइम मोटिव है। फिर वी टॉक अबाउट NEEM, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंसमेंट मिशन। तो ये वाला स्टेप जो है, ये जॉइंटली वाज टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द कैंडिडेट्स। तो इसमें मतलब कि ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से दोनों को ही बेनिफिट है। तो बेनिफिट जैसे एम्प्लॉयर को भी है और एम्प्लॉय को भी है। एम्प्लॉय को क्या है, मतलब कि जब ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको रेम्यूनरेशन भी दे देते हैं, पैसे कुछ मिल जाएंगे, तो अगेन दैट इंक्रीजेस द मोटिवेशन एंड डेडिकेशन लेवल, एंड देन ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग। एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये है कि उसको लोग कॉम्पिटिटिव मिलेगा, एंड यदि हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही दे रहे हैं तो व्हाट विल हैपन इज ऑब्वियसली मतलब इफेक्टिवनेस, एफिकेसी और कॉम्पिटेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल इंक्रीजेस। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो बेनिफिशियल है। वी कैन देन टॉक अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो दिस वाज implemented through the NSDC, National Skill Development Corporation. It is an outcome based skill training scheme of MSDs with objective to enable and mobilize a large number of Indian youth. ठीक है, enable and mobilize a large number of Indians to take up outcome based skill training and become employable and earn their livelihood. तो these were the different initiatives that we should remember। और कभी आ सकता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्कीम है, तो we can obviously eliminate and mark as per the knowledge that we gain। तो लुकिंग एट द कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, तो देख इम्पॉर्टेंट तो है ये, स्किल डेवलपमेंट इज हाईली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यदि जॉब नहीं मिलेगी तो अगेन एनार्की डेवलप होगा, अगेन ट्रबल होगा, बिकॉज एवरीवन विल गेट फ्रस्ट्रेटेड कि वी आर ग्रोइंग अप बट वी आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म टू फ्रेशर इन जॉब मार्केट, अप्रेंटिसशिप से क्या हो रहा है कि आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो इवन टू फ्रेशर्स इन जॉब मार्केट। ठीक है, इसलिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो टारगेट भी है गवर्नमेंट का, दैट हैज आल्सो इंक्रीज। तो उनका जो टारगेट है, इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फ्रॉम प्रेजेंट 2.3 लाख टू 50 लाख क्यूमुलेटिवली बाय 2020। States may create a state apprenticeship cell and encourage engagement of apprentices to the maximum of 10% of total strength of private establishments and state public sectors. So this can be asked some of the time, so we just should glance, have a cursory look at it. The quality of outcomes from apprenticeship courses must be enhanced with increased transparency and robustness on the training along with certification procedures। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ आउटकम फ्रॉम अप्रेंटिसशिप कोर्सेज मस्ट बी इनहेंस्ड, मतलब कि आपका जो ट्रेनिंग का क्वालिटी है उसको आपको इस तरह का डिजाइन कर लेना चाहिए, वो ऐसा इंप्रूव कर लेना चाहिए जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी और रोबस्टनेस हो, ताकि वो सस्टेनेबल हो और अल्टीमेटली दैट बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एज इन द यंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic, that is setting up of new umbrella entities।
तो रिसेंटली अभी न्यूज में था कि प्राइवेट कंपनीज लाइक रिलायंस, अमेजन, टाटा, तो दे आर नाउ ट्राइंग टू सेट अप न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज फॉर पेमेंट सिस्टम्स। तो ये है, तो दिस आइडिया वाज बेसिकली फ्लोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फ्लोट किया किस लिए? क्योंकि देयर वाज अ नीड टू क्रिएट एन अल्टरनेट मैकेनिज्म टू द एग्जिस्टिंग एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक क्या है, ये अकेला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब ये बोला कि हम लोग को और मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए और इनोवेशन आने चाहिए, तो व्हाई नॉट इसको थोड़ा ओपन अप किया जाए एंड लेट्स ब्रिंग private companies so that we can have more competition, we can have more innovation, more research, and obviously they can increase their share also. Obviously private companies ने तो आएंगी नहीं। तो RBI has proposed to set up a new pan India new umbrella entity NUE, or entities focusing on retail payment systems with a minimum paid up capital of rupees 500। तो दिस आइडिया वाज फ्लोटेड इन फरवरी 2020 और आपका डेडलाइन भी मार्च 31 तक था। तो वी विल लुक एट इट। तो लेट्स लुक अबाउट दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज। तो ये अम्ब्रेला एंटिटीज कैसे होंगे? दिस विल बी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज। अब ये क्या करेंगे? ये मतलब कि दे विल सेट अप देमसेल्व्स, दे विल मैनेज एंड ऑपरेट न्यू पेमेंट सिस्टम्स स्पेशली इन द रिटेल स्पेस, जैसा हम लोग मतलब बात किए थे अभी थोड़ी देर पहले, सच एज एटीएम्स, व्हाइट लेबल पीओएस। व्हाइट पीओएस इज पॉइंट ऑफ सेल। तो व्हाइट लेबल एटीएम्स और ये सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मतलब दे आर नॉन बैंक्स विच ऑपरेट, और वो पैसा मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे व्हाइट लेवल एटीएम हो गया, जैसे इंडी कैश था आपका, इस तरह से। तो व्हाइट लेवल उस तरह का टर्म है, तो वो पॉइंट ऑफ सेल हो गया। फिर आधार बेस्ड पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज। तो these new umbrella entities will also develop new payment methods, standards and technologies. Obviously when they will get the opportunity, to competition, they will have more competence, they will have more money into the research, and they will come up with more innovations, and they will also have technology as well as operate clearing and settlement systems. उनका और functions क्या होगा? Operate clearing and settlement systems, identify and manage relevant risks such as settlement, credit, liquidity and operational, and preserve the integrity of the system, monitor retail payment system related issues in the country and internationally to avoid shocks, frauds and contagions that may adversely affect the system। तो मतलब सब कुछ सेफ हो, सिक्योर हो जो ट्रांजैक्शंस है, एंड इकोनॉमी को पॉजिटिव वे में आगे लेते जाए और कोई एडवर्सिटी फेस ना करना पड़े। Such an entity will be a company incorporated in India under the Companies Act। मतलब हम लोग को बस इतना याद रखना है, कंपनीज एक्ट के तहत होगा। दिस विल बी अ फॉर प्रॉफिट। अभी तक जो था वो नो प्रॉफिट पे चलता था एनपीसीआई, तो दिस विल बी फॉर प्रॉफिट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका एप्लीकेशन क्या है? और वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि ये आपका जो एनयूई है, दे कैन कैरी ऑन एनी अदर बिजनेस एज सुटेबल। मतलब कि वो और भी बिजनेस कर सकते हैं जो कि आपका फर्दर स्ट्रेंथन करेगा रिटेल पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, जो आपका रिटेल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा। तो उस तरह का कोई भी एक्टिविटी वो कर सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? It should contain a detailed business plan covering the payment system proposed to be set up or operated, along with other documents to duly establish its experience in the payment ecosystem. A proposed organizational strategy in terms of fulfilling its responsibility as an umbrella entity should also be given in the business plan। तो जो आपका business plan होगा उसमें आपको organizational strategy और उसका responsibility जो भी होगा, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। Then we have to talk about this the criteria of, मतलब जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है। द एंटिटी एलिजिबल टू अप्लाई एज अ प्रोमोटर और द प्रोमोटर ग्रुप फॉर द एनयूई शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स। पहला है कि ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडियन सिटीजन्स विथ 3 years एक्सपीरियंस। तो मतलब कि आपको इंडियन सिटीजन तो होना ही है, उसके साथ 3 year का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन द पेमेंट इकोसिस्टम एज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर। तो इतना डिटेल नहीं, बस आपको ये वाला पार्ट अच्छे से देखना पड़ेगा कि आपको इंडियन सिटीजन विद 3 years एक्सपीरियंस इन द पेमेंट इकोसिस्टम होना चाहिए, एंड दैट विल बी सफिशिएंट आई गेस टू आंसर योर प्रीलिम्स का क्वेश्चन जब भी आता है। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है? यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन एनयूईज एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। तो जो भी नॉर्म्स गाइडलाइंस है आपके, उसको यदि फॉलो करते हो तो दिस इज अलाउड। नो सिंगल प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप शुड हैव मोर देन 40% इन्वेस्टमेंट कैपिटल in the capital of the entity।
तो जो भी है कोई भी एक सिंगल मतलब कि आपका चार पांच कंपनी मिलके या मतलब कि चार पांच प्रोमोटर मिलके आपका एक जो टोटल कैपिटल होगा, मतलब कोई एक प्रोमोटर के पास 40% से ज्यादा शेयर नहीं होगा, ठीक है। और जो प्रोमोटर्स होंगे उनका 10% से भी कम नहीं होगा। द प्रोमोटर शुड अपफ्रंट डेमोन्स्ट्रेट अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉट लेस देन 10% एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर सेटिंग अप द एंटिटी। तो आपका मतलब बेसिकली वो आपका क्रूशियल पैरामीटर है इसको मतलब कि आपका नया एनयूईज के लिए। Then again, there is one more thing. The promoter or the promoter group shareholding should be diluted to a minimum of 25% after 5 years of the commencement of business. तो क्या कह रहा है, आप अभी मैक्सिमम 40% तक हो सकते हो, बट बाद में आपको 25% तक विद ग्रेजुअली होना पड़ेगा 5 साल के बाद। A minimum net worth of rupees 300 should be 300 crore should be maintained always. तो ये भी एक क्राइटेरिया है। Any entity holding more than 25% of the paid up capital of the NUE will be deemed to be a promoter, ठीक है। The NUE should conform to the norms of corporate governance. उसको corporate governance के norms follow करने पड़ेंगे along with fit and proper criteria for persons to be appointed on its board. ठीक है। The RBI, ये आपका crucial point है, the RBI retains the right to approve the appointment of directors. तो क्या RBI retains the right to approve the appointment of directors as also to nominate a member on the board of the NUE. NUE, if you don't remember, यदि तक भूल गए हो तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज को कहते हैं, तो दैट इज NUE. The RBI has set a deadline of 31st March for firms to submit their applications for setting up new NUEs, तो इसीलिए न्यूज में था। Major participants, several companies have either tied up with banks or with major tech players to apply for NUEs. ऑब्वियसली पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा बोला गया कि 40% से ज्यादा शेयर नहीं होगा। तो जो आपके मतलब कि इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। यू कैन हैव डोमेस्टिक कंपनीज, यू कैन हैव बाहर के कंपनीज। तो डोमेस्टिक में जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, दे हैव आल्सो along with Facebook and Google invested in Jio platforms. Tata Group in collaboration with HDFC, Kotak Mahindra, Mastercard and Bharti Airtel, they are tying up and these are the major participant. यदि ग्लोबल कंपनी की बात करें तो ई कॉमर्स फर्म अमेजन है आपका, वो आपका टाई कर रहे हैं वीजा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फिनटेक स्टार्टअप्स लाइक बिल्डेस्क एंड पाइन लैब्स, एंड पेटीएम एंड ओला भी दे आर कमिंग टुगेदर, दैट आल्सो हैज बीन रिपोर्टेड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हम लोग को जरूरत है क्यों? एज यू से मतलब कि अभी तक रिपोर्ट्स में ये आ रहे थे कि एनपीसीआई इज द ओनली एंटिटी मैनेजिंग ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम एट द मोमेंट। तो क्या हो रहा है कि एफिकेसी इज रिड्यूसिंग, क्योंकि जब अकेला होता है तो व्हाट हैपेंस इज थोड़ा सा मोनोपोलिस्टिक हो जाता है कि वो जो भी करेगा, तो आपका जो है थोड़ा लेजी सा हो जाता है आपका। उसके बाद फिर इनोवेशन थोड़ा कम हो जाता है, एंड जैसे ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और आएंगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा एंड यू विल बी ऑन योर टोज, यू विल लुक फॉर मोर इनोवेशन। थोड़ा आप दौड़ोगे, अभी तक मान लो आप वॉक कर रहे हो तो यू विल रन, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे ही आपके मोर कॉम्पिटिटर्स होंगे तो ऑब्वियसली यू विल बी ऑन द टोज एंड द कंपटीशन ऑब्वियसली एनीहाउ विल इंक्रीज। तो देन यू टॉक अबाउट, अब जैसे जैसे एनयूईज बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बढ़ेगा एज वी डिस्कस, एंड ऑब्वियसली देन शेयर भी इनका बढ़ेगा, मतलब कि डिजिटल पेमेंट सेक्टर में ऑब्वियसली मोर कंपटीशन होगा। तो अभी 0% शेयर है प्राइवेट कंपनीज का, दैट आल्सो विल इंक्रीज। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स इन इंडिया एट द मोमेंट। ये आपका आरबीआई का इनिशिएटिव्स है, आरबीआई के साथ साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन, आरबीआई प्लस आईबीए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो आपको पहले ही बताया था नॉट फॉर पेमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नाउ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बहुत डिटेल में उसे नहीं जानना। What is the aim of NPCI? To create a robust payment and settlement system infrastructure in India. तो robust payment and settlement infrastructure आपको डेवलप करना है इंडिया में। To provide infrastructure to the entire banking system in India for physical as well as electronic payment and settlement system, जो कि safe हो, secured हो। Also to bring innovations, तो वहीं पे वो मतलब कि अकेला पढ़ रहा था। To bring innovations in the retail payment system through the use of technology for achieving greater efficiency in operations and widening the reach of पेमेंट सिस्टम। तो वाइडनिंग द रीच ऑफ पेमेंट सिस्टम ये हो गया, एफिशिएंसी इंप्रूव करना हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जिसके कारण आपको थोड़ा इनोवेट भी करना पड़ता है, और इसी कारण से
मे बी द आरबीआई केम अप विद दिस आइडिया कि आपको और कंपटीशन लाना चाहिए और प्लेयर्स इन्वॉल्व होने चाहिए फॉर दिस। जो आपका एनपीसीआई उसके 10 कोर प्रोमोटर बैंक्स हैं, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सिटी बैंक एंड एचएसबीसी बैंक। ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सबका विकास स्कीम। तो ये आपका इनडायरेक्टली अभी आया था न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस में, आई थिंक दोनों में आया होगा, बट आई रिकॉल इंडियन एक्सप्रेस में दे हैड समथिंग लाइक कि टैक्स नोटिस भेजा गया है फॉर प्री जीएसटी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन केसेस। ठीक है, प्री जीएसटी से पहले जो आपका डिस्प्यूट था कुछ सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स को लेकर, तो उस कारण से उस डिस्प्यूट को फिर से मतलब कि टैक्स नोटिसेस भेजे गए और वहीं से ये उठ के आया था। उसमें इसका सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एसवीएलडीआर स्कीम के बारे में बात हुआ था, एंड इसलिए न्यूज में तो मे बी प्रीलिम्स में आ सकता है, एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इज बीइंग डिस्कस्ड। अब इसमें क्या है कि ये आपका 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लेगेसी टैक्सेस, नेमली सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, सो दैट टैक्स पेयर कुड फोकस ऑन जीएसटी। तो ये क्या बोला था कि आपका कुछ मतलब लिटिगेशंस को क्लोज कर देंगे इफ इतना परसेंट ऑफ ड्यूटी आपको पे कर दिए, यदि आपका जो ड्यूटी था वो दैट वाज विद सम स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे कि बोला गया था कि यदि क्विक क्लोजर है लिटिगेशंस का, तो प्री जीएसटी रेजीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो रिलीफ विल बी प्रोवाइडेड यदि 70% ऑफ द ड्यूटी आप पे कर देते हो। यदि टोटल ड्यूटी आपका 50 लाख या लेस है तो 70% पे कर दो, और यदि मान लो 50 लाख से ज्यादा है तो आप 50% पे कर दो, और फिर उसके बाद दैट विल मतलब कि लीड टू द एंड ऑफ ऑल द डिस्प्यूट्स एंड रेजोल्यूशंस ऑन द गवर्नमेंट साइड, तो आपको फिर बाद में कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली यदि आपका कुछ आउटस्टैंडिंग एरियाज ऑफ रेवेन्यू है तो वहां पे एक डिफरेंट क्राइटेरिया था, दैट वाज 60%। 60% फॉर यदि आपका 50 लैक्स और लेस यदि हो तो, और यदि मान लो आपका 50 लाख से ऊपर हो तो देन इट विल बी 40% इफ इट इज ग्रेटर देन 50 लैक्स। तो ये क्राइटेरिया थे 60-40% के ये, लेकिन ये वाला जो है आपका दिस इज फॉर आउटस्टैंडिंग एरियाज, और वो वाला आपका जो था पहला मतलब कि 70 और 50 दैट वाज फॉर लिटिगेशन जो कि मतलब कि चल ही रहे थे और फिर मतलब कि आपका एरिया तक फाइनल नहीं हुआ था। तो दिस स्कीम बेसिकली प्रोवाइडेड टैक्स पेयर्स विथ रिलीफ इन पेमेंट ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट्स। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 70% टू 40%। तो मतलब एक केस में आपका 70-50 था, एक में 60-40, तो 70-40%, दैट इज व्हाई इट इज डिस्कसिंग। तो इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर फुल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी इन सम केसेस। तो दिस इज अबाउट योर सबका विश्वास legacy dispute resolution SVLDR scheme. Now let's talk about these three terms: write off, write down and waive off. अगेन मतलब कि ये न्यूज में होगा तभी हम लोग ये इसे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसेंटली कांग्रेस एमएलए जो थे मतलब कि मध्य प्रदेश में, इफ यू वुड हैव हर्ड या रेड इन न्यूज़पेपर, तो दे स्टेज्ड अ वॉकआउट फ्रॉम असेंबली फ्रॉम आई मीन ओवर फार्म लॉ वेवर स्कीम। तो ये हमेशा से न्यूज में रहता है। तो दीज आर द थ्री टर्म्स जो कि न्यूज में हमेशा ही रहते हैं, तो वी थॉट वी विल डिस्कस इट वंस। तो व्हेन यू टॉक ऑफ लोन राइट ऑफ, तो लोन राइट ऑफ क्या है? इट मीन्स द लोन अमाउंट इज रिमूव्ड फ्रॉम बैंक्स अकाउंट बुक्स टू फ्री अप द कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर द बेसिल नॉर्म्स। मतलब कि आप बैंक के खाते से उसे रिमूव कर दे रहे हो। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि ट्रायल्स फॉर रिकवरी नहीं होगा, लेकिन बैंक में हम लोग शो नहीं कर रहे, बैंक के बैलेंस शीट में आपको उसको हटा दे रहे हैं, सो दैट बैंक का बैलेंस शीट लुक्स गुड, ताकि उसके बेसल 3 नॉर्म्स जो है उसमें इफेक्ट कम हो या ना हो, मतलब क्योंकि वो हटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये कब करते हैं हम लोग राइट ऑफ? बैंक कॉल्स फॉर द राइट ऑफ अ लोन बोरोड बाय अ डिफॉल्टर व्हेन द चांसेस ऑफ लोन रिकवरी आर ऑलमोस्ट जीरो। मतलब कि आपका लोन रिकवरी का चांस ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एंड इट्स एसेट्स आर नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, like banks have written off almost 1.2 lakh crore in the past 9 months of fiscal 21 to improve liquidity as per RBI. ठीक है, when you talk about this write down,
तो राइट डाउन इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू, ठीक है। अब मतलब कि यहाँ पे आप पूरा नहीं खत्म कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो जितना वो डेटा होगा मतलब कि हम उसको रिड्यूस कर लेंगे व्हेन इट्स फेयर मार्केट वैल्यू हैज फॉलन बिलो द कैरिंग बुक वैल्यू एंड दिस बिकम्स एन इम्पेयर्ड एसेट। तो द अमाउंट टू बी रिटन डाउन इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑन द एसेट, टेक्निकल है बहुत ज्यादा उसमें मत जाइए, एंड द अमाउंट ऑफ कैश दैट बिजनेस कैन ऑब्टेन बाय डिस्पोजिंग ऑफ इट इन द मोस्ट ऑप्टिमल मैनर, ठीक है। It is the difference between the book value of the asset and the amount of cash the business can obtain by disposing of it in the most optimal manner, ठीक है। तो this is what is important। तो बेसिकली ये रिडक्शन इन द बुक वैल्यू, आप पूरा राइट डाउन नहीं कर रहे, मतलब कि राइट ऑफ नहीं कर रहे, आप कुछ परसेंटेज रिड्यूस कर रहे हो, तो वो आपका जो भी इम्पेयर्ड एसेट है आपको पता है नहीं मिलेगा, तो उस अमाउंट को डिस्पोज कर दिए और फिर वो जो डिफरेंस है उसे हम लोग वो अमाउंट को रिटर्न डाउन या राइट डाउन बोलते हैं, ठीक है। राइट डाउन इज नाउ द अपोजिट ऑफ राइट अप एंड इट विल बिकम अ राइट ऑफ इफ द, मतलब कि राइट डाउन राइट अप राइट ऑफ सब सिमिलर टर्म है, तो मतलब किसी तरह से राइट डाउन मतलब थोड़ा सा कम किए, राइट अप मतलब थोड़ा बढ़ा दिए, एंड राइट ऑफ मतलब कि पूरा ही खत्म कर दिए। इफ द इंटायर वैल्यू ऑफ एसेट बिकम्स वर्थलेस, पूरा एनपीए है एंड उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं आपके बैंक अकाउंट से, बैंक के बैलेंस शीट से, ठीक है। देन वेव ऑफ हम लोग बहुत बार सुनते हैं और अभी इसी कारण ये न्यूज में था। तो लोन वेव ऑफ और लोन राइट ऑफ में यदि अंतर बता दें तो दिस विल बिकम मोर सिंपलर। तो ये क्या है, वन मेजर पॉइंट दैट डिफरेंशिएट लोन वेव ऑफ एंड लोन राइट ऑफ इज दैट लोन अमाउंट इज नॉट क्लियर्ड आउट कंप्लीटली इन राइट ऑफ, ठीक है। जब हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो हम लोग बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, लेकिन उसका ट्रायल जो है ये आपका चलता रहता है, एज वी डिस्कस ट्रायल्स फॉर रिकवरी विल बी चलता रहेगा, ठीक है। तो वेव ऑफ में आपका क्या है, लोन वेव ऑफ में the complete loan is cleared or forgiven and all recovery procedures are stopped, there is no need to repay the loan, ठीक है। let's talk about the next one, Bureau of Indian Standards। Bureau of Indian Standards, it is the national standard body of India established under the BIS Act 2016। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया, ठीक है। तो दिस इज योर स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये क्या करता है, इट हैज एन एम टू ensure harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental thereto। मतलब किसका काम क्या है, it has to provide safe and reliable quality goods, ठीक है। it has to minimize health hazards to consumer, इसलिए आपका ग्रेडिंग करता है और इसलिए भी ये स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। these help in promoting exports and imports substitute and control over the proliferation of varieties etc through standardization and certification and testing, ठीक है। तो if you see, so what it does is it provides traceability and tangibility benefits to the national economy in these ways, ठीक है। अब ट्रेसेबिलिटी और टेंजिबिलिटी को देखें तो ट्रेसेबिलिटी कैसे बढ़ जाएगा, मतलब कि यदि आपका इस तरह से यदि स्टैंडर्ड मार्क है इसमें, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसमें है, तो मतलब इट कैन इंप्रूव यदि प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत है तो मतलब कि सिंस इट इज रजिस्टर्ड, सिंस इट इज मार्क्ड, तो मतलब कि इट कैन इंप्रूव योर प्रोडक्ट रिकॉल्स, इट कैन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग यदि आपका इन्वेंट्री है तो, देन इट कैन इंप्रूव बेटर सेफ्टी इस तरह से फूड का, देन यू हैव मतलब कस्टमर सर्विस आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली क्वालिटी ऑल्सो विल इंप्रूव यदि एक ग्रेडिंग आपका मिल रहा है इससे, तो ठीक है। तो दिस मतलब किसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, रीजनल ऑफिसेस है, आई डोंट थिंक उसके डिटेल में हमें जाना चाहिए। देन द एक्टिविटीज यदि बात करें तो स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन, मतलब कि आपका जो भी स्टैंडर्ड्स रखना उसे फॉर्मुलेट करना, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम, फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम, हॉल मार्किंग स्कीम, तो ये सब इसके अंदर आता है BIS के अंदर, तो दिस वी शुड नोट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स EFI, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है कौन पब्लिश किया, दिस वी शुड नो, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ आपका ऑप्शन दे सकता है जिसमें आपको कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स वाज पब्लिश्ड लास्ट वीक बाय US कंजर्वेटिव थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि दिस हैज बीन पब्लिश्ड द फर्स्ट टाइम
आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, इसमें 184 कंट्रीज वेयर कवर्ड, ठीक है। और पीरियड ऑफ स्टडी जो था आपका जुलाई 2019 से जून 2020 तक था। तो इंडिया का इसमें रैंकिंग इज 121 विच इज वेरी पुअर, 121 आउट ऑफ 184। तो वी कैन ऑब्वियसली इंप्रूव इन दिस एस्पेक्ट, ठीक है। तो द टॉप कंट्रीज यहाँ पे सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 1 2 3। तो अब देखते हैं इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द तो इसमें जब बात कर रहे हैं तो दिस इज एन एनुअल गाइड, तो ये आपका हर साल पब्लिश होता है। एंड उसका पर्पस क्या है? टू मेजर द प्रोग्रेस मेड इन एडवांसिंग इकोनॉमिक फ्रीडम विच इट क्लेम्स टू ब्रिंग ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी। तो जितना इकोनॉमिक फ्रीडम होगा तो वो ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, आपका कंट्री ज्यादा प्रॉस्परस हो पाएगा। अब इसको इंडेक्स को रैंक करने का हमेशा कुछ पैरामीटर्स होता है, दैट उससे हम लोग का सवाल आ सकता है इन यूपीएससी। तो इंडेक्स रैंक्स 12 इंडिकेटर्स, तो उसको कैटेगराइज कर दिया 4 कैटेगरीज में। तो जो कैटेगरीज है दैट वी शुड नो, एक तो रूल ऑफ लॉ, दूसरा साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड कितना ओपननेस है मार्केट में। तो रूल ऑफ लॉ फर्स्ट, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट्स। देन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक फ्रीडम आखिर जरूरी क्यों है। तो इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन टू कंट्रोल हिज और हर ओन लेबर एंड प्रॉपर्टी। दैट इज वाई इकोनॉमिक फ्रीडम जरूरी है। आज इफ आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग हेयर, आई कैन बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग समवेयर एल्स आफ्टर सम डे। एक तरह से यदि आप सामान इस दुकान से खरीदते हो, फिर यू विल ट्राई टू परचेज इट फ्रॉम द अदर वन। तो अगेन एज इन वो आपका इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट। आज आपका मन है कि यू विल परचेज समथिंग, सम मान लो लैंड इन सम कमर्शियल लैंड, लेट सपोज इन दिल्ली, या फिर दिल्ली में ही कहीं चांदनी चौक में, और अदरवाइज इन करोल बाग और समवेयर एल्स। तो दैट freedom should be there, that's the fundamental right. And also to talk about in an economically free society, individuals are free to work, produce, consume and invest in any way they please. यही मैं अभी बात कर रहा था। तो that is how you do, आपको जो खाने का मन है, कहीं से परचेज करने का मन है, कहीं काम करने का मन है, it is all entirely your will and wish. In economically free societies, governments allow labor, capital and goods to move freely and refrain from coercion or constraint. मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाएगा और रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बोल रहा है कि फ्री सोसाइटीज में गवर्नमेंट्स जो है वो आपका लेबर, कैपिटल और गुड्स, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर विदाउट any coercion or constraint of liberty beyond the extent necessary to protect and maintain liberty itself, ठीक है। तो that was about your economic freedom index. इंडिया का रैंक 121 है, दैट वी शुड रिमेंबर एक तो। और बाकी जो बेसिक चीज है, जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स है रूल ऑफ लॉ, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट्स। तो दीज आर द 4 थिंग्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो व्हेन यू लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्री पैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड वाज, government was planning to roll out pre-packs as a resolution mechanism under the insolvency and bankruptcy code. जो आपका insolvency and bankruptcy code है, उसके अंदर एक रिजोल्यूशन मैकेनिज्म लाने की बात कर रहा था फॉर एमएसएमईज। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो थोड़ा दिन पहले क्या था कि गवर्नमेंट ब्रॉट सम स्पेशल फ्रेमवर्क, एंड अब बात कर रहा था आपका प्री पैक्स का। तो क्या किया, दोनों को क्लब कर दिया, बिकॉज दोनों में ना फीचर्स वेर वेरी सिमिलर। तो इसलिए व्हाट दे सेड वाज, दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को क्लब कर दो, सो दैट अल्टीमेटली देखो दोनों का पर्पस आपका यही था कि आपका रिजोल्यूशन क्विक हो, ठीक है, और जल्दी से जल्दी हम इसे रिजोल्व कर पाए। क्योंकि जब भी स्ट्रेस्ड, मतलब कि आपका जो डेट होगा वो यदि स्ट्रेस्ड होगा तो दिक्कत होगा, तो मतलब कि वो आपका जल्दी रिजोल्व हो जाना चाहिए, लिक्विडिटी। तो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो प्रीपैक इज एन एग्रीमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस्ड कंपनी। तो व्हाट इट डज इज, इट इज एन एग्रीमेंट। प्रीपैक क्या आपका एग्रीमेंट है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ debt of a distressed company through an agreement between secured creditors and investors instead of a public bidding process. आपका क्या है, पहले ऑक्शन वगैरह होता था, तो उसे चेंज करके अब बोल रहा है कि डायरेक्टली एग्रीमेंट हो जाएगा, तो ताकि टाइम आपका रिड्यूस हो जाए बिडिंग विडिंग में ना जाके, ठीक है। तो जो आपको ये याद रखना है कि स्पेशल फ्रेमवर्क था पहले, और अब प्रीपैक की बात की, दोनों को क्लब किया टू सो दैट रिजोल्यूशन कैन बी क्विकर। और नॉर्मली अब जो है, पहले क्या हो रहा था कि मतलब इट वाज टेकिंग मोर देन 270 days और समथिंग। तो
इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, तो उसे रिड्यूस करके वो 90+30 के आसपास, मतलब कि ऑलमोस्ट लगे 100 डेज के अराउंड वो उसे रिजॉल्व करना चाह रहा है। ठीक है, तो इज इट अ न्यू प्रैक्टिस दैट वी हैव कम अक्रॉस? तो नहीं, मतलब कि इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉलोइंग द इनैक्टमेंट ऑफ द बैंक्रप्सी रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो इज इट इन यूज इन यूएस ओनली? नहीं, मतलब कि दिस इज यूज्ड बाय सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस एंड द यूके, बट वहां भी ऐसा नहीं है कि मतलब it has not been criticized. It has been criticized for lacking transparency and its impact on operational creditors such as suppliers compared to an open bidding process like the CIRP. अब CIRP क्या है? It is Corporate Insolvency Resolution Process. Corporate Insolvency Resolution Process. ठीक है, in India's case, such a system would likely require that financial creditors agree on terms with potential investors and seek approval of the resolution plan for the National Company Law Tribunal. तो आपका अप्रूवल कहां से लेना पड़ता है? एनसीएलटी से। ठीक है, तो आपका जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है दे एग्री विद द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड ये अप्रूवल आपको मिल जाता है एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से। ठीक है, दिस प्रोसेस वुड लाइकली बी कंप्लीटेड मच फास्टर, जो मतलब कि वही मैं बता रहा था कि मतलब कि नाउ द टारगेट इज टू रिड्यूस इट, टू ब्रिंग इट टू 90 डेज प्लस 30 डेज। वो मैं आपको बताता हूँ इधर। जैसे प्रीपैक स्कीम इज एम्ड एट क्विकर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन विद अ टाइमलाइन ऑफ 90 डेज फॉर द सबमिशन ऑफ अ रिजोल्यूशन प्लान। तो आपको 90 दिन है सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान और 30 डेज फॉर अप्रूवल बाय एडजुकेटिंग ऑथोरिटी। ठीक है, तो दिस प्रोसेस वुड लाइकली बी कंप्लीटेड मच फास्टर देन द ट्रेडिशनल सीआईआरपी जहां पे बिडिंग होता है, which requires that a creditors of the distressed company allow for an open auction, जो मैं बता रहा था, for qualified investors to bid for the distressed company. ठीक है, ऐसा भी देखा गया था, मतलब कि सितंबर 2020 के आसपास 74% अराउंड थ्री मतलब कि 74% ऑफ ऑनगोइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैड क्रॉस 270 डेज, जो मैं पहले बोल रहा था। तो पहले आपका बहुत टाइम लग रहा था, उसे रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप लिया गया। अगेन आईआईपी इज ऑलवेज इन द न्यूज, तो यूपीएससी में भी सवाल आया है, मतलब कि दे आस्क्ड जो 8 कोर इंडस्ट्री है उसमें से कुछ कि कौन कौन से आपके 8 कोर इंडस्ट्रीज में है या नहीं है। तो आईआईपी हैज ऑलवेज बीन इन द न्यूज, तो वी विल डिस्कस इट। तो जो एनएसओ है, पहले इसका नाम सीएसओ था, नाउ इट हैज बीन चेंज टू एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ, ये आपके मॉस्पी के अंदर है एक डिपार्टमेंट। तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये आपका बोल रहा है आईआईपी फॉर जनवरी 2021 हैज कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.6%। तो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है 1.6% से। हमें इस कॉन्ट्रैक्शन का बस आपको सीरीज याद रखना है, कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कब, मतलब आपको एग्जैक्टली याद रखने हैं, बस आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। तो व्हाट इज आईआईपी? इट इज एन इंडेक्स व्हिच शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स। तो आपका ग्रोथ रेट बताता है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स ऑफ द इकोनॉमी इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स का ग्रोथ रेट को बताता है। दिस इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय एनएसओ, प्रीवियसली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनएसओ कहलाता है, एंड दैट इज डन ऑन अ मंथली बेसिस। And this also tells that 8 core industries comprise 40.27% of the weight of items included in the IP। जो आपका 8 core industry की बात हो रही है, that comprise 40.27% of the weights of item included in the IIP. Now, what are these 8 core industries? तो एक हो गया आपका कोल, उसके बाद you can talk about crude oil, then you can talk about natural gas, you can talk about refinery product, you can talk about fertilizers, steel, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका 8 कोर जो है वो आपका 40.27% आता है। अगेन यू शुड नो कि इसमें आपका बेस ईयर जो है 2011 2012 है। अगेन आई थिंक यहाँ पे ये मिसिंग है, मतलब कि वी कुड हैव समथिंग, इसका ब्रॉड जो डिवीजन है दैट इज अंडर माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका 77% मैन्युफैक्चरिंग, या फिर दूसरे स्लाइड में होगा शायद, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्ट ऑफ 77.6% ऑफ आईआईपी। तो ये आपके ब्रॉड सेक्टर हो गए, और 8 कोर में हम लोग वैसे बांटे हुए हैं। यूज बेस्ड सेक्टर जो है वो आपका बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बांट सकते हैं। अगेन व्हाट इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसका बेस ईयर जो है 2011-12 है।
तो दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। बेसिकली एक बार सवाल आ जाता है तो यू शुड ऑलवेज नो अबाउट दिस, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, तो वी शुड टेक नोट ऑफ इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू 81 बॉन्ड्स। 81 बॉन्ड्स, तो 81 हेयर स्टैंड्स फॉर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। ठीक है, आपका रिसेंटली यस बैंक क्राइसिस का आपको कुछ ध्यान होगा, तो उससे रिलेटेड था ये, तो 81 बॉन्ड्स उस कारण से। तो व्हाट आर दीज? तो 81 बॉन्ड्स जो है, दीज आर टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड एंड परपेचुअल बॉन्ड्स। क्यों बोलते हैं परपेचुअल? वी विल कम टू इट। दैट बैंक्स इशू टू शोर अप देयर कैपिटल, कोर कैपिटल बेस टू मीट द बेसिल 3 नॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली 81 बॉन्ड्स के बारे में बस इतना याद रखना है कि दीज आर इशूड बाय बैंक्स, ठीक है, टू कंप्लाई विथ द बेसिल 3 नॉर्म्स। ठीक है, इशूड बाय बैंक्स, ठीक है। अब किस लिए करते हैं? ताकि शोर अप देयर कैपिटल। तो बॉन्ड्स यदि आप बाहर दे रहे हो, तो अगेन कैपिटल आपके पास आया, तो आपका जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिल 3 में, एडिक्वेसी के लिए आपका रिक्वायरमेंट होता है कुछ, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग टू शोर अप देयर कैपिटल ये आप रिलीज करते हो 81 बॉन्ड्स। अब इसके कुछ स्पेशलिटी होते हैं, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली हाई यील्डिंग एनुअल कूपन्स। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपका फिक्स मैच्योरिटी डेट्स नहीं होता है। यानी कि जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि 3 साल का बॉन्ड है, बट यदि तब तक मतलब कि यदि लगा कि नहीं आप इतना दे पाएंगे, तो व्हाट बैंक्स डू इज वो आप उसका मैच्योरिटी डेट जो है वो बढ़ा देते हैं, 3 साल के आगे बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो दे हैव दैट ऑप्शन की मतलब कि दे कैन डिफर द कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो इसी कारण से ये न्यूज में था, यस बैंक का क्राइसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो 81 बॉन्ड के कारण ही था। तो 81 बॉन्ड्स, तो वो क्या किया था, वो डेफर कर दिया था, मतलब कि जब उसका मैच्योरिटी डेट क्लोज था तो उसी समय वो रेफर कर दिया था। भैया अट्रैक्टिव क्यों है? बिकॉज दिस इज हाई यील्डिंग। ठीक है, तो ये जब जब भी कुछ हाई यील्डिंग होता है तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू द इन्वेस्टर्स। अब अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि आपका फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रेट्स देता है, तो हाइयर देन फिक्स डिपॉजिट रेट्स है, इस कारण से जो इंटरेस्ट रेट है, तो दैट लीड्स एंड दैट मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब जो इंटरेस्ट पेड है, यदि मान लो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मान लो आपका बैंक जो है वो लॉस में चला गया, तो इट हैज दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉट इवन पेइंग दैट इंटरेस्ट रेट। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका 81 बॉन्ड्स का, और इसी कारण से थोड़ा सा क्राइसिस होता है। और यहाँ चूंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इस कारण से लोग लगाते हैं, और ऑब्वियसली इसलिए गेन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट रिस्क का भी चांस होता है। तो जब यदि बैंक इफ दे इनकर सम लॉस, दे नीड नॉट इवन पे देयर इंटरेस्ट। ठीक है, एंड ये इंटरेस्ट जो आपका कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, दैट इज ऑल गॉन। ठीक है, तो दैट इज वाई म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, आई मीन मतलब कि म्यूचुअल फंड्स वाली जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें भी मतलब कि ये अट्रैक्टिव हो जाता है, एंड दैट इज वाई इन्वेस्टमेंट इज मतलब कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब कि ज्यादा आपको बेनिफिट्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा गेन होगा, बट कभी कभी लॉस भी झेलना पड़ता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में ऑब्वियसली इसमें जो लिखा है, द होल्डर्स ऑफ दीज बॉन्ड्स कैन गेट देयर इन्वेस्टमेंट बैक बाय सेलिंग देम इन सेकेंडरी डेट मार्केट। तो सेकेंडरी डेट मार्केट में आप बेच सकते हो, तो दैट इज व्हाट इज गिवन। तो वो लेकिन यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वी कैन नाउ टॉक अबाउट, ठीक है, 81 बॉन्ड्स तो हो गया। लेट्स टॉक अबाउट बेसल नॉर्म्स। तो नाउ वी आर फॉलोइंग बेसिल 3 नॉर्म्स। तो ये आपका जो 81 बॉन्ड्स है, ये बेसिकली शोर अप देयर कैपिटल फॉर मीटिंग द बेसिल 3 नॉर्म्स। अब बेसिल 1 और 2 नहीं चलता है, तो बेसिल 3 नॉर्म्स पे हम लोग आ चुके हैं। तो व्हाट इज बेसिल नॉर्म्स बेसिकली, तो वो एक ब्रीफ में हम लोग देख सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो इन मच डिटेल इसमें। बेसिल एक आपका स्विट्जरलैंड का सिटी है, वेयर यू हैव द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट विच फॉस्टर्स कोऑपरेशन एमंग सेंट्रल बैंक्स। तो आपके जो भी कंट्री सेंट्रल बैंक्स, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, एंड इस तरह के जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं फॉर ऑल द कंट्रीज, तो उसे हम लोग सेंट्रल बैंक्स कहते हैं। दे हैव दैट कॉमन गोल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखना है और कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस रखना है, ताकि आपका बैंक क्राइसिस ना हो, जैसे आपका 2008 में एक बड़ा सा क्राइसिस हुआ था दैट, तो उस तरह का कुछ शॉक ना हो, कुछ एडवर्सिटी फेस ना करना पड़े, इसलिए
दे हैव कम अप विथ बेसल नॉर्म्स. तो प्रेजेंटली इट इज बेसल 3 नॉर्म्स जो कि 2008 के बाद आया था, अराउंड 2010 आया था. तो बेसल गाइडलाइंस अब हैं क्या, मतलब कि दे रेफर टू ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स कॉल्ड बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, व्हाट वी आल्सो कॉल एज BCBS. The set of the agreement by the BCBS mainly focuses on risks to banks and the financial system is called the Basel Accord. ठीक है. The purpose of the accord is to ensure that financial institutions have enough capital. That is why we talked about shoring up of the capital on account to meet obligation and absorb unexpected losses. तो हम लोग का यदि आप देखोगे तो बैंक में you have SLR also की कुछ पैसा रखते हैं और इस तरह के different चीजें रखते हैं so that we have enough money in the bank also और आपका एडवर्सिटी को थोड़ा झेल भी पाए, कुछ एनपीएस भी झेल पाए और इस तरह से आपका स्मूथली चलता जाए बैंकिंग सिस्टम. ठीक है. तो बेसल नॉर्म्स का बेसिकली बेसल नॉर्म्स का एक सिंपल सा फंडा है. तो टू स्ट्रेंथन बेसिकली द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट. बेसल नॉर्म्स के लिए एक 3 चीजें, रेगुलेशन, उसके बाद सुपरविजन, उसके बाद यू कैन टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. तो ये यदि 3 चीज हो रही है तो इसी कारण से बेसल नॉर्म्स है, सो दैट वी कैन हैव अ रेगुलेशन फॉर, सो दैट हम लोग क्राइसिस में ना जाए हमेशा. सुपरविजन ऊपर से आप देखते रहो एंड रिस्क को कैसे मैनेज करें, जैसे कि आपका वी टॉक्ड अबाउट CRAR होना चाहिए एंड ऑल दैट. ठीक है. So India has accepted Basel Accords for the banking system. Basel III norms were a set of rules that banking regulators around the world came up with after the global financial crisis in 2008 to strengthen bank balance sheet. So we talked about regulation, supervision and risk management. ठीक है. Moving on to the next topic, that is PCA framework. तो PCA framework है क्या and why it is in news. ठीक है. तो PCA फ्रेमवर्क, PCA का मतलब है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, दैट इज व्हाट PCA इज. एंड ये आपका न्यूज में क्यों था, मतलब कि अभी रिसेंटली आई थिंक अ वीक बैक और समथिंग, आई थिंक न्यूज में था, RBI रिमूव्ड IDBI बैंक फ्रॉम PCA फ्रेमवर्क. ठीक है. तो दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज. तो PCA फ्रेमवर्क है क्या, PCA फ्रेमवर्क में हम लोग किसी बैंक को डालते क्यों और हटाते क्यों हैं, ये सब हम लोग को बेसिकली जानना है. दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट PCA फ्रेमवर्क. तो what is this framework? It is a framework wherein banks with weak financial metrics are put under watch by the RBI. जो बैंक्स हैं आपके विथ वीक फाइनेंशियल मेट्रिक्स, तो जिनका बैलेंस शीट थोड़ा कमजोर हो रहा है एंड जिनके एनपीएस ज्यादा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, तो इनके कुछ पैरामीटर्स हैं. तो यदि पैरामीटर्स मैच नहीं करते हैं या फिर पैरामीटर्स वीक दिखते हैं आरबीआई को, तो दैट इज पुट अंडर सुपरविजन ऑफ आरबीआई थ्रू दिस PCA फ्रेमवर्क. ठीक है. तो दिस वाज इनिशिएटेड बाय आरबीआई इन 2002. ठीक है. टू डिसिप्लिन बैंक्स व्हेन दे रिपोर्ट पुअर एंड रिस्की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. सो जब आपका परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर हो, तो जब भी कुछ ऐसा लगे तो यू आर अंडर दैट सुपरविजन, सो दैट और सिचुएशन बेकार ना हो, इनफैक्ट इंप्रूव कर जाए. ठीक है. अब PCA फ्रेमवर्क्स में बैंक को रिस्की कब ठहराता है आरबीआई, तो देर आर सम पैरामीटर. तो यहाँ 3 पैरामीटर्स की बात है. कैपिटल, वी विल नॉट गो इनटू डिटेल यहाँ पे. एक होता है आपका कैपिटल रेशियोज, दूसरा एसेट क्वालिटी एंड तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी. तो दीज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. ठीक है. जैसे कि बात करते हैं हम लोग कैपिटल रेशियोज की, तो मतलब कि वहां पे 3 रेटिंग्स है बेसिकली, 1 2 3. तो मतलब कि एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि यदि आपका CRAR जो है, कैपिटल रेशियो एडिक्वेसी रेशियोज जो है आपका, तो वो बेसिकली मतलब कि इफ इट इज बिटवीन 7.75 टू 10.25, तो वो आपका लेवल 1 पे मतलब कि कम रिस्की है. उससे कम है तो इट विल बी मोर अराउंड 6 to 7 है यदि, तो इट विल बी मोर रिस्की. और उससे नीचे तो ऑब्वियसली देन और भी ट्रबल है, तो इट विल अगेन पुट, आई मीन इट विल बी मोर रिस्की, एज इन द बैंक विल बिकम मोर रिस्की. ठीक है. तो as most bank activities are funded by deposits that need to be repaid, देखो most bank activities are funded by deposit, जो भी हम लोग बैंक में जमा करते हैं वही उनका एसेट होता है बेसिकली बैंक का. तो it is imperative that a bank carries a sufficient amount of capital
टू कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज, ठीक है, क्योंकि उनका जो है काम ही चलता है उसी से, तो दैट इज वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो पीसीए इज इंटेंडेड टू हेल्प अलर्ट द रेगुलेटर एज वेल एज इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर्स. तो मतलब कि आपका रेगुलेटर को तो मतलब आरबीआई को तो आपका बता ही दिया, साथ में इन्वेस्टर्स और डिपॉजिटर्स है उनको भी पता होना चाहिए कि बैंक इज गोइंग इनटू डीप वाटर्स, थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इट कैन बी ट्रबलसम, तो आप ध्यान रखो. इट एम्स टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर. तो अगेन दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट था. The last topic of the day will be finance, a hurdle for electric vehicles. This is talking about electric vehicles. So we are now moving towards electric vehicles. तो उससे रिलेटेड नीति आयोग, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में ये डिस्कस किया है नीति आयोग और आपका रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूशंस. तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट नीति आयोग यदि इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो दे हैव रिलीज्ड अ रिपोर्ट known as mobilizing electric vehicle financing in India. तो they are talking about electric vehicle का financing. तो व्हाट आर द की हाइलाइट्स, तो वो हम लोग देखेंगे. तो यहाँ पे बात ही कर रहा है फाइनेंस का, तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर डिस्कशन ऑन फाइनेंस, ठीक है. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट ऑफ फाइनेंस नीडेड. तो दे आर टॉकिंग की ट्रांजिशन विल रिक्वायर अ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $$ 266 बिलियन, जो कि 19.7 लाख करोड़ के आसपास होगा इन ईवीज. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ईवीज आपका बैटरी, फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर बैटरीज ओवर द नेक्स्ट डिकेड. तो ये आपका कैसा फाइनेंस नीडेड होगा, तो बता रहे हैं कि फाइनेंसिंग आपका जरूरी होगा एंड दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम, द रियल चैलेंज लाइज, ठीक है. दे आर ऑल्सो टेलिंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री, तो जो आपका जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को फाइनेंस करने वाला इंडस्ट्री विल यूज अ मार्केट साइज ऑफ $50 बिलियन बाई 2030, which is around 80% of the current size of India's retail vehicle financing industry. तो आप सोच लो कितना ज्यादा इंक्रीज होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो नाउ देर इज अ नीड टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल बैरियर्स. तो टिल नाउ मेजर फोकस वाज ऑन ओवरकमिंग एडॉप्शन हर्डल्स. पहले अभी क्या फोकस था आपका, टू ओवरकम द एडॉप्शन हर्डल्स एसोसिएटेड विथ टेक्नोलॉजी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेबिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर. अभी तक वी वेर मोर कंसर्न अबाउट दीज थ्री थिंग्स, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेबिलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर. बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट हर्डल, दैट इज फाइनेंसिंग, ठीक है. तो दिस इज नाउ द नेक्स्ट क्रिटिकल बैरियर जो कि आपका मेक और ब्रेक करेगा सिचुएशन. तो यदि ये आ गया तो वी कैन मूव टूवर्ड्स दैट, एंड वहां पे हम लोग थोड़ा सा पॉल्यूशन कम हो जाएगा एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर. तो दैट इज वेयर द रोल ऑफ फाइनेंसिंग विल बी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग ईवीज एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है. तो दिस ट्रांजिशन कैन बी क्विकर यदि फाइनेंसिंग हम लोग का बेटर हो जाए तो. तो चैलेंजेस फॉर द एंड यूजर्स, तो एंड यूजर्स आर आल्सो फेसिंग सेवरल चैलेंजेस सच एज हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंश्योरेंस रेट्स एंड लो लोन टू वैल्यू रेशियोज. तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि वी आर फेसिंग एज अ एंड यूजर. तो हाई इंटरेस्ट रेट रहता है तो ऑब्वियसली दैट डिस्करेजेस, इंश्योरेंस रेट्स भी हाई है अभी इसके लिए, तो ऑब्वियसली देर आर नॉट प्रॉपर एज एन इंकरेजमेंट कि आप इस तरफ अभी तुरंत ही मूव कर पाओ, थोड़ा टाइम लगेगा. तो दैट इज वेयर नीति आयोग केम अप विथ 10 सॉल्यूशंस, दे हैव प्रपोज्ड 10 सॉल्यूशंस. तो लेट्स टॉक अबाउट देम, सम ऑफ देम. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट सबवेंशन. तो अब क्या करेगा नीति आयोग, इज सजेस्टिंग कि हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर सकते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या इंटरेस्ट रेट सबवेंशन की बात कर सकते हैं. तो दैट विल अगेन इनकरेज कि ज्यादा इस पे डेवलपमेंट हो, फिर प्राइस यदि कम होगा तो ऑब्वियसली थिंग्स विल मूव टूवर्ड्स द ईवीज. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्रिएटिंग बेटर पार्टनरशिप बिटवीन ओईएम्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट गारंटीज एंड वारंटीज. तो दिस इज इंपॉर्टेंट यदि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ओईएम्स के बीच में यदि आपका पार्टनरशिप हो जाएगा, दैट कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट गारंटीज एंड वारंटीज. Developed and formal secondary market to improve the resale value of EVs and improve their bankability. तो अभी तो प्राइमरी मार्केट भी ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, तो मतलब कि यदि ये आएगा तो यदि इसका रीसेल वैल्यू अच्छा रहा तो वी कैन, आई मीन इंडिया में सेकंड हैंड मार्केट्स भी बहुत है, तो रीसेल वैल्यू बेटर होगा तो ऑब्वियसली एज इन लोग के लिए और आसान हो जाएगा. टैकलिंग द आइडेंटिफाइड बैरियर्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर. जो भी आपके बैरियर्स है उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में टैकल करें विथ इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल्स. तो
मतलब कि विथ टाइम वी कैन कम अप विथ मोर इनोवेशंस, जिससे कि आपको लोगों को ईवीज खरीदने में सुविधा हो। ठीक है, देयर वर सम अदर रिकमेंडेशंस बियॉन्ड फाइनेंसेस, वो देख लेते हैं। डिजिटल लेंडिंग की बात है, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग डिजिटल नाउ, आपको फिजिकली बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन टॉक अबाउट बिजनेस मॉडल इनोवेशन, तो वो तो हमेशा ही स्कोप रहता है। फ्लीट एंड एग्रीगेटर इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट्स, तो जितना इलेक्ट्रीफाई होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी स्मूथर। क्रिएशन ऑफ एन ओपन डेटा रिपोजिटरी फॉर ईवीज, ठीक है। एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट ई व्हीकल्स, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज दे हैव ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड द फेम इंडिया स्कीम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आपका फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक, तो एफ से आपका फास्टर हो गया, ए से एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ई से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक हो गया। तो ये आपका जो फेम स्कीम है वो आपका काफी पहले लॉन्च हुआ था 2015 में। तो डिटेल्स दिया हुआ है, डिफरेंट फेजेस। तो this the first phase was extended to March 19, wherein about 2,000 to 80,000 hybrid and electric vehicles were supported by way of a demand incentive amounting to about 359 crores. This data is not important as such. ये important है कि this is saving around 50 million liters of fuel and reduction of around 124 kilograms of CO2। तो ये डाटा से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, आपका पॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट अबाउट 500 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री वाज अंडरटेकन, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो ज़्यादा व्हीकल्स हो सकते हैं, ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन होंगे, तो ज़्यादा ईवीज होंगे आपके रोड पे, तो दैट विल बी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज डिप्लॉयड 65 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द कंट्री। तो ESL under the Ministry of Power has deployed 65 public charging stations for electric vehicles in the country. ESL is also deploying around 300 AC and 170 DC captive chargers across government offices in the country. इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Phase 2 plan to support about 100,000 electric two-wheelers, 50,000 electric three-wheeler passenger wheeler passenger cars, and 7,000 e-buses through demand incentives for a period of 3 years. This phase was started in April 2019. Budget provision of 1,000 crore was created. Department of Heavy Industry had issued an expression of interest inviting proposals for establishment of 1,000 charging stations under this phase. The following has been launched by the government for the electric vehicle promotion of India. Under the new GST regime, GST on EVs is reduced. तो ये मतलब कि आपसे मेंस में भी सवाल आ सकता है, EVs के लिए क्या क्या किया है। तो GST जो है आपका वो रिड्यूस कर दिया एग्जिस्टिंग 12% से 5%। फिर against the 28% GST rate which says up to 22% for conventional vehicles, तो conventional vehicles के रिस्पेक्ट में आपका GST जो है काफी रिड्यूस कर दिया। फिर the Ministry of Power has allowed the sale of electricity as a service for the charging of electric vehicles. This will attract investment into the charging infrastructure, ठीक है। सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सर्विस के रूप में डाल दिया, तो दैट विल अलाउ मोर इन्वेस्टमेंट, दैट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स वहां पे, ठीक है। The government has granted an exemption to battery operated transport vehicles and transport that run on ethanol and methanol fuels from the requirement of the permit. तो ये भी एक important चीज है। तो बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल साथ में जो इथेनॉल और मिथेनॉल से रन होती है उनमें एक्सेम्पशन कर दिया है, तो परमिट्स के लिए। द गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द एक्सेम्पशन of registration fees for battery operated electric vehicles to promote the use of eco friendly vehicles in the country, ठीक है। एग्जाम्पशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फी भी किया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको नोट करना चाहिए, कभी मेंस में भी आए तो यू कैन आंसर देम इस तरह से। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अलाउड द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 years टू ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव ई स्कूटर्स। तो दैट इज इट अबाउट इट। तो ये आपका फाइनेंसेस, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। तो जो आपका लास्ट हर्डल है बेसिकली फाइनेंसिंग, यदि इंप्रूव हो जाएगा